पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है। দিল্লীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। CJPৰ সংসদ অভিযানক লৈ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত ৰাজধানী চহৰ। কন্দুৱাত গেছ আৰু লাঠিচালনা আৰক্ষীৰ। বৰষুণ আৰু আৰক্ষীৰ কটকটীয়া প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি আজি দিল্লীত যন্তৰ মন্তৰত সমবেত হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী যুৱক যুৱতী। আজি এই প্ৰতিবাদে ল'লে এক ভয়াৱহ ৰূপ। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ আৰু লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবীত CJPৰ কৰ্মীসকলে যেতিয়া সংসদ ভৱনৰ দিশে সমদল উলিয়ালে, তেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় দিল্লীত পৰিণত হ'ল এক কুৰুক্ষেত্ৰত। প্ৰেছ ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে, সমান্তৰালভাৱে কৰে লাঠিচালনা। নিৰাপত্তাৰ বাবে সংসদ ভৱনৰ আটাইকেইখন গেট বন্ধ কৰি দিয়া হয়। 5টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেট্ৰ' ষ্টেচন সুৰক্ষাৰ খাতিৰত সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে এই আন্দোলনৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুকক শনিবাৰে যন্তৰ মন্তৰৰ অনশনস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উঠাই নি সফদৰজং হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিল। হস্পিটেলৰ বিচনাৰ পৰাই ৱাংচুকে তেওঁক মুক্তি দিবলৈ আৰু আন্দোলনত পুনৰ যোগদান দিবলৈ দাবী জনাইছিল। ইফালে আজিৰ এই উত্তাল পৰিস্থিতিৰ মাজতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে CJPৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেকো আটক কৰা বুলি খবৰ ওলাইছে। অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীক তীব্ৰ হেঁচাৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আলোচনাৰ বাবে সঁহাৰি জনাইছে।
मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए। उन्होंने के डेली एजेंडा में ना राम मंदिर का उल्लेख, ना नीट का उल्लेख, ना एथेनॉल का उल्लेख। आज देश के मन में इन मुद्दों के अलावा क्या चल रहा है? বিজেপিৰ একাংশৰ মতে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ মূল্যহীন। জনতাই চৰকাৰ বনাইছে, চৰকাৰে নিজৰ মতে কাম কৰা অধিকাৰ আছে। जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। লোকসভাত এইবাৰ এই অধিৱেশনতে পৰিলক্ষিত হ'ল এক নজিৰবিহীন দৃশ্য। তৃণমূলৰ বিসম্বাদী সাংসদসকলৰ বাবে পৃথককৈ বহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ অনুগামীৰ মতে হিয়া হেনো বিশ্বাসঘাতকতাৰ বেঞ্চ। There were 3 benches. One used to be treasury bench and other used to be opposition bench. Today a new category has come, the traitor bench. So Sudeep Bandyopadhyay is going to be sitting in the front as the leader of the traitor bench. This is a new day in parliamentary democracy. So far he is stable and he is continuing his hunger strike, and he has sent his very best for the young protesters of this country who have finally awakened to this very difficult, very dead system that does not listen to them at all. So here a peaceful march will happen very soon. Peaceful protesters have been gathered here for the past 30 days, and we have shown the way how to do a peaceful protest and put our points forward. See, the administration is trying to open talks with the government. We have been asking for a talk from day one. It's they have come very late, but we have opened our hearts and we have said that we are willing to talk to them. And let's see where it goes. There's been no clarity from their side as of now. The ball is in their court.
जब हमने शांति से कभी अपनी आवाज़ उठाई है तो उस आवाज़ को उठाने का, उस आवाज़ को दबाने का भारतीय सरकार ने जिम्मा उठा रखा है। पर मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मुझे एक को उठाओगे तो 1000 और पैदा होंगे। सर बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के। जी सर। और आज यहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ लाखों लोग कल इकट्ठे होंगे। ये सेना के लोग जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, ये भी मजबूर हैं। हम इन्हें कुछ नहीं कहते, पर हमारी सरकारें अंधी हो चुकी हैं। जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक सरकार गद्दी से नहीं हिलेगी, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक शरीर में आखिरी कतरा मेरे है, मैं लड़ते रहूंगी, मैं लड़ते रहूंगी। धन्यवाद। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता, या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए और वो बहुत भावुक थे कि जिस तरह से यूथ ने उनको बहुत उकसाने के बावजूद भी उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना और उस पर डटे रहे, और वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इशू को वो रिजॉल्व करें और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने का मौका दें। और सोनम कहते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स उसी पेशेंस और उसी शांतिपूर्वक तरीके से जाके पार्लियामेंट में अपना मुद्दा पेश करेंगे, जैसा उन्होंने आज प्रदर्शन स्थल पे प्रदर्शित किया। धन्यवाद। कितनी क्रूएल्टी के साथ दिल्ली पुलिस ने बच्चों को पीटा है। 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस वालों ने, और ये जो सर फोड़ा है वो मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है। मेल पुलिस ऑफिसर को मैंने खुद देखा है 12-12 साल की बच्चियों का गला पकड़ते हुए, 15-16 साल की लड़कियों का गला पकड़ते हुए। ये लड़की यहाँ पर बैठी है, अब इधर आइए। ये लड़की को आप दिखाइए। इस लड़की के दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसके छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से? दिल्ली पुलिस को बच्चों का खून करने के ऑर्डर से। जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे और बच्चों को चोट लगे, हम नहीं चाहते थे और बच्चों का सर फूटे। कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी
सरकार से सवाल ही ना करे। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से यहाँ पीसफुल बैठे हुए थे हम, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस से क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में आपने, क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? कितने आंदोलक जख्मी हुए? कितने लोगों को चोट लगी? 150 से ज्यादा अभी तक मेरे पास जो नंबर आया, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में। कल मैं आरएमएल में जाकर मिलकर आया हूँ, बहुत ही हालत खराब है बच्चों की। अभी मैं यहाँ से लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल जाऊंगा और स्टूडेंट से मिलने के लिए। लेट मी फिनिश। ये जो भी कल हरकत की है, ये जो भी कल हरकत करी है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर, बहुत ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर कौन से वो कर रहे हो? हमारे एक एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड्स पर बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहां से आए? दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। कल सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग जो पुलिस नहीं थे, उनके हाथ में भी बैटन दे दी थी, डंडे दे दिए थे। गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब, क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते, योर लाइफ इज टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे, एंड दिस इज वेरी सीरियस। हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट है। हम क्या चाहते हो आप लोग? और बच्चों का सर फूटे? तो धरना आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी वाले ट्रक का वीडियो शेयर किया था आपने, आपको पता था कि कुछ ना कुछ ये लोग प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने उसके बाद जेपी नड्डा से मिलना और आपके लोगों का वहां जाना, आपको लग रहा है फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांग को और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठा कर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। नेम टैग हटाने के ऑर्डर्स दिए थे पुलिस को, नेम टैग हटाकर इन लोगों ने पीटा। उसके बाद में कोई और मैसेज आया शाम में गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ नहीं? अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। अभिजीत, इतने वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे पुलिस ने क्या किया, हर घटनाक्रम का वीडियो मौजूद है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस बोल रही है कुछ नहीं हुआ। बेशर्म है दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये गुंडे है। मराठीमध्ये सांगा तर किती दिवस आंदोलन सुरू राहणार? किया जा रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का विदेशी कनेक्शन, इस तरह का नैरेटिव ऐसे कैमरा में देखो हो गया भाई, एक सारे मौजूद। विदेशी कनेक्शन इसलिए अपने बच्चों का सर फोड़ रहे हो तुम, विदेशी कनेक्शन इसलिए अपने ही देश के बच्चों का सर फोड़ रहे हो, क्या लॉजिक है ये? Should we assume that you will not do a march anymore right now? We are not going to do a march because this government and the police wants the blood of the students. They don't care for the life of the students, but we do care for them. We don't want any student to get hurt. What we have seen yesterday was really tragic. It was a black day for India.